नमस्कार, गुड इवनिंग आती है। यहाँ पे मुकाबला आज पंजाब दे शेर और बंगाल टाइगर्स। व्हाट अ गेम, बिग गेम। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग सीजन 6 सेक्टर 16 चंडीगढ़। We're all set for the toss, the second game of the evening, and this is going to be a big one. Bengal Tigers taking on the home team, that's Punjab de Sher, and I've got a few special men with me standing alongside for the toss. First of all, Sonu Sood, the captain of Punjab de Sher, then Jishu, the captain of Bengal Tigers, all set for the toss, and it's going to be Sonu to spin the coin. We have a specially minted Parle-G coin for the toss. It's all in readiness, yes? 2020 is the call from Jishu, and he's won the toss. So Jishu, you won the toss. What are you going to decide to do first? We'll bat first. Any reasons for that, just seeing the last game? The wicket is very good, and let's hope for a big score. The morale of the team would be high because you really played well in the last game, and that was a big match for you. To be very honest, it's a new game, new day, so we will play a new match. So we have won the last match definitely. Yes, we are more confident, but it's a new match again. Yeah, the best part was the batting. You know, the way you batted in the last game, I think that was terrific. Yeah, actually, all the batsmen, and whoever batted, really scored run, and that's a plus point for us. Last time, Jishu, you mentioned you wanted to make 1,000 runs. Now, that didn't happen. That was really over the hill. But this time, in reality, exactly what the kind of score you're looking for? 2,000. Okay. All the best and good luck for this game. Thank you so much. Sonu, you haven't won the toss, but you're going to bowl first. So, any target you want to restrict the opposition? We'll try to hold them to the minimum total. But I would say it's pretty cold. The fielding definitely is going to help us if we are fielding early. But it's finger crossed. We are going to have our best. Yeah, let's hope for the best. But overall, looks to be a very good wicket. We saw in the last game as well, the first game of the evening. Yeah, it's a batting wicket, and definitely, we saw some high scores in the last game. Definitely, this match we have to hold them, and we have to score some good scores. Yeah. And playing in front of your home crowd, a few words for them, because this is special feeling. Yeah, of course, when you're playing for the home ground, I think we have a huge support from our Chandigarh Shades. So let's hope for the best, and we play a great match and give them a great entertaining game. And also, more importantly, you still have a chance. You still have outside chance to qualify for the semi-finals. Yeah, we have to set a target, so we have to hold them at the minimum total, and we have to score them in pretty good overs. So let's hope for the best, and once we set the targets, and we'll try to chase that. Thanks, Sonu. All the best for this game. Thank you so much, sir. Thank you. So the news from the center is Bengal Tigers, they have won the toss, and they're going to bat first. और यहाँ पर एक बड़ा टॉस जीता है बंगाल टाइगर्स ने। और ये देखिए लाइनअप, पंजाब दे शेर, सोनू सूद, गुरप्रीत कुकी, बीनू टिल्लो, जस्सी गिल, गुलजार चहल, टी खरौड़, गुलजार, पी राय, ए सप्रू, एनहांस, एच संधू। काफी ऑलराउंडर्स हैं इस टीम में। और बंगाल टाइगर्स की जब हम बात करते हैं, जीशु सेनगुप्ता, विवेक, आदि, जॉय, सुमन, उदय, बड़े प्लेयर इंद्रशीष, यूसुफ, मोहन, सैंडी और मैंटी। बंगाल ने टॉस जीत लिया है, पहले बल्लेबाजी करेंगे पाटे पे। यार रितिंदर, बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अगर आप देखें पंजाब दे शेर के लिए बहुत स्थिति नाजुक है, क्योंकि नेट रन रेट अगर आप देखें -3 का है, तो यहां से उभर के आना, क्वालिफाई करना बहुत कठिन है। पर दो टीमें अभी भी फ्रेम है, मुंबई हीरोज और बंगाल टाइगर्स। अगर बंगाल टाइगर्स ये मुकाबला जीतती है तो वो सीधा क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि 2 मुकाबले उनके नाम होंगे। पर अगर बंगाल टाइगर्स हार जाते हैं तो नेट रन रेट मुंबई हीरोज का बेहतर है, तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मुंबई हीरोज की टीम की भी नजरें इस मुकाबले के ऊपर होंगी, क्योंकि वो भी जानते हैं कि वो क्वालिफाई कर सकते हैं सेमीफाइनल के लिए। और फिलहाल दोनों ओपनर्स आते हुए बंगाल टाइगर्स के जॉय, जिन्होंने काफी जॉय दिया पिछले मैच में, अहमदाबाद ने जबरदस्त बल्लेबाजी की, अपने अंदाज में खेलते हैं। और जॉय बहुत बेहतरीन टेक्निक भी उनके पास है, जिस अंदाज से ड्राइव्स करते हैं, आगे आके फ्रंट फुट पे कदमों का इस्तेमाल करते हैं। और गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे पंजाब दे शेर के लिए आदि संधू। इनके पास गति है, और मेरे साथी सोडी इनसे काफी प्रभावित भी हैं। तो पहली गेंद इस मुकाबले की, शॉट ऑफ लेंथ था, इसको मुलायम का प्रयोग करते हुए खाता खोला पहली गेंद पे। तो पहले रन बोर्ड पे आते हुए बंगाल टाइगर्स के लिए।
अजय, आपने बिल्कुल ठीक बोला, बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं हाडी संधू। हमने उनकी बॉलिंग का कमाल देखा था अहमदाबाद में, किस तरह उन्होंने स्विंग कराया, सटीक सट्टे पे बॉलिंग की और बड़ा अच्छा कैरी किया। तो वो जो बॉलिंग होती है वो एक टूर्नामेंट के लेवल को ऊंचा ले जाती है। तो आज बहुत ही उम्मीदें होंगी हाडी संधू से। और ये इंद्रशशी अच्छे बल्लेबाज हैं और जरूरी है इनको अच्छा स्टार्ट यहाँ पे लेना, लंबी साझेदारी पनपना। और ये कोच, हमने इनको देखा था अहमदाबाद में, काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं, बाहर से इमोशनल हैं। तो आज इनके इमोशन देख के बहुत मजा आने वाला है। जी हाँ, पर यहाँ पे वाइड का इशारा, थोड़ा सा दिशा से भटकते हुए, गति इनके पास है, पर बहुत जरूरी है अनुशासन से गेंदबाजी करें, सही जगह पे गेंदबाजी करें। तमाम सपोर्ट है, समर्थक आए हुए हैं पंजाब द शेर टीम के लिए। याद रखिए, पहला सीजन है ये पंजाब टीम के लिए और अभी तक कोई मुकाबला जीता नहीं है। और इससे बेहतर क्या मुकाबला हो सकता है जब आप अपने घर पे खेल रहे हैं, आपको काफी समर्थन है, क्राउड की सपोर्ट आपके लिए है। हालांकि आज टॉस जीता बंगाल के कप्तान ने और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। और मजाक मजाक में हमेशा कहते हैं कि 1000 रन 2000 रन। वो याद है अहमदाबाद में मैंने उनसे पूछा कि कितना स्कोर आप बनाना चाहेंगे, उन्होंने कहा 1000 रन, और आज डबल कर दिया। पर पिछली बार जब 1000 रन उन्होंने कहा था तो 200 रन तो उन्होंने बनाए। तो आज देखना होगा कहां तक वो जाते हैं। 1000 रन 2000 रन ऐसे होता बोलने से तो क्या कमाल होती, तो करना तो पड़ेगा अंदर। और यहाँ पे हाडी संधू थोड़ा सा आगे किया हुआ गेंद, बहुत सटीकता से खेला, थोड़ा हवा में जरूर था लेकिन 4 रन मिलेंगे, इंपॉर्टेंट 4। ये जो जोड़ी है जॉय इंद्रशीष की, ये बहुत खतरनाक है। और ये देखिए शॉट, मुझे लगता है कोई भी बैट्समैन जो कि अच्छी श्रेणी की क्रिकेट भी खेल रहा है इससे बहुत प्रभावित होगा। ये क्षमता है, सीधे बल्ले से खेला। हाडी संधू की आप बात कर रहे थे, चर्चा हम कर रहे थे सोडी की, इनके पास गति है, पर ये ऐसा लग रहा है बूस्ट 3 या 4 गिलास पी के आए हैं इंद्रशीष, जैसे बल्लेबाजी कर रहे हैं और जैसे स्ट्रोक लगाए इन्होंने, ना केवल आज अभी तक पर पिछले मैच में भी। बहुत बढ़िया फॉर्म में है इंद्रशीष और यही उम्मीद होगी आज बंगाल टाइगर्स को कि इंद्रशीष रन बनाए, लंबी पारी खेलें जिस तरह उदय तिवारी ने खेली थी भोजपुरी दबंग के लिए। और ये खेमा बंगाल टाइगर्स का, एक ही उम्मीद से यहाँ पे सब कि आज का मैच वो जीतें और इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ें। हसीनाएं हमने देखी हैं सीसीएल में और अलग ही मोटिवेशन होती है। और ये थोड़ा पटका हुआ गेंद, आपने हसीनाओं की बात करी, कई बार बैठी होती है, मतलब कुर्सी पे बैठी होती हैं, पर यहाँ पे इतनी उत्तेजना नजर आ रही है कि खड़े हुए हैं। जानते एक एक रन बहुत महत्वपूर्ण है। बंगाल टाइगर्स की निगाह खाली एक तरफ है और वो ये है कि मुकाबला जीतना ही जीतना है किसी भी तरह। और देखिए कोई बैठा नहीं हुआ, सारे जो समर्थक हैं, जो उनके खिलाड़ी हैं, साथी खिलाड़ी भी हैं, खड़े हुए हैं और कितने उतावले नजर आ रहे हैं सोडी। अजय, क्रिकेट बड़े बड़ों को खड़ा कर देती है। और ये ओह, संधू यहाँ पे नो बॉल का इशारा, शायद फुट फॉल्ट लग रहा है यहाँ पर, नहीं शायद हाइट के लिए नो बॉल दी गई है। जी हाँ, हाडी संधू की कोशिश थी कि बैट्समैन को थोड़ा बैकफुट पे रखा जाए, लेकिन सीधा लॉ है क्रिकेट में, अगर शोल्डर हाइट से ऊपर है तो उसको नो बॉल दे दिया जाएगा। और अंपायर का बिल्कुल सही निर्णय और फ्री हिट, ये अब नया रूल आ गया है, कोई भी नो बॉल क्रिकेट में होगा उसकी फ्री हिट होगी। जी हाँ बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा हाइट के कारण वो फ्री हिट मिली है, पर ये एक बहुत बड़ा प्लस रहता है क्योंकि एक तो एक्स्ट्रा गेंद भी है, रन भी जुड़े हैं। और अभी तक पहला ओवर, हालांकि हाडी संधू जो कि अब गति प्रदान कर सकते हैं, ये ओवर महंगा साबित हुआ उनका। ये अच्छी गेंद, बढ़िया वापसी, पहले ओवर की समाप्ति, 7 रन, मेरा किसी नुकसान। मुंबई जैसी टीम को हराया अहमदाबाद में, एक बड़ी जीत उनके लिए थी। गेंद आते हुए दूसरी तरफ से, और दिलचस्प है कि राउंड द विकेट आ रहे हैं, ओवर द विकेट गेंदबाजी नहीं कर रहे। और ये देखिए उठा के खेला है ऑन साइड पे, टाइमिंग शायद इतना बेहतर नहीं जितना वो चाहते थे, फिर भी 4 रन मिलेंगे जॉय को। जॉय जिस लय में है उसको रोकना बहुत नामुमकिन। बहुत जबरदस्त शॉट, पहली गेंद की लाइन को पिक कर लिया था। छोटा बॉल को बहुत बेहतरीन खेलते हैं, ज्यादा छोटा भी नहीं था, बट ही वाज रॉक सॉलिड ऑन द बैक फुट। सिर्फ दिशा दी और 4 रन मिले। और ये देखिए प्रार्थना है पूरी तरह इस टूर्नामेंट में, कमिटमेंट का जवाब नहीं। अच्छी गेंद, अटैक थोड़ा चेंज किया, राउंड द स्टंप्स आए और एंगल चेंज किया। जसी गिल जरूर अच्छा करना चाहते हैं, गति है इनकी बॉलिंग में, लेकिन सटीकता दिखानी होगी और इस बॉल में जरूर दिखी।
या क्योंकि अराउंड द विकेट आ रहे हैं, एंगल प्राप्त करना चाहते हैं, अगर रूम नहीं देना चाहते हैं बैट्समैन को, क्रैम्प करना चाहते हैं, और यही कारण है कि आप कई बार जब इस लाइन पे आप गेंदबाजी करेंगे, वो एंगल बनाएंगे, तो कट शॉट लगाना, क्योंकि ये बहुत शरीर के पास से आप कट शॉट लगाते हैं, तो फिर कामयाब नहीं होते। शायद वही प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे गिल। उठा के खेला है, गैप में खेला, यहाँ पे 4 रन मिलेंगे। जबरदस्त प्रहार, पहले ही जैसी देखा गेंद उनके स्लॉट में वार किया, बेशक हवा में गई पर गैप में गई, और वो महत्वपूर्ण था। अरे इस शॉट ने तो वीरेंद्र सहवाग की याद करवा दी। थोड़ा सा आगे बॉल, और किस तरह देखिए बॉल पर टूट पड़े, गैप में खेला, बेहतरीन 4 रन, अपनी बेहतरीन फॉर्म को यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए। इनका खेलना बहुत जरूरी है, अगर ये लंबा खेलते हैं तो पंजाब के शेरों के लिए चिंताएं बढ़ सकती हैं। और ये देखिए खुशी, ये देखिए खुशी, जानते हैं कि एक स्टार्ट की जरूरत है, एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, एक नींव मिलती है तो बेहतर रहेगा। अगर आप सीसीएल सुपर फैन है, जल्द से जल्द फोन उठाइए और कॉल करिए 5333 पे। और एक बेहतरीन मौका है 1 लाख रुपए जीतने का, नकद। जी हाँ, बिल्कुल आज ही। बहुत जरूरी है ये मुकाबला बंगाल टाइगर्स के लिए। पंजाब की टीम लगभग बाहर हो चुकी है, क्योंकि उनका जो नेट रन रेट है -3 का है, पर बंगाल अगर ये मुकाबला जीतती है तो वो प्रवेश कर जाएगी सेमीफाइनल में। अगर वो हारते हैं तो वो बाहर हो जाएंगे। तो उनके लिए इक्वेशन सोडी बहुत सिंपल है, ये मुकाबला जीतना ही उनको है किसी भी हाल में। उस लिहाज से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है बंगाल के लिए। लॉन्ग ऑफ रखा गया है, 1 ही रन मिलेगा। ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत ही बढ़िया रही है अगर हम इस टूर्नामेंट की बात करते हैं बंगाल टाइगर्स के लिए। ये उनकी टीम, जॉय, इंद्रशीष, शीशु, सेनगुप्ता उनके कप्तान, विवेक, आरडी, सुमन ने अच्छा परफॉर्म किया है, उदय ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, यूसुफ, मोहन, सैंडी, ऑलराउंडर से भरी हुई है ये टीम। मैंटी, यार ये दोनों मेरे फेवरेट हैं, सैंडी और मैंटी। बहुत बढ़िया राइमिंग वर्ड्स हैं, सैंडी और मैंटी, और दोनों बढ़िया परफॉर्मर भी। वैसे करारा प्रहार, खिलाड़ी डीप में है तैनात, थोड़ा स्लिप करता हुआ, और मुझे लग रहा है ओस का प्रभाव नजर आ रहा है, जैसे स्लिप किया। 2 ओवर की समाप्ति, 17 बिना किसी नुकसान। आरडी संधू का स्पेल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंप्रेस किया था, प्रभावित किया था इन्होंने अहमदाबाद में। क्या वैसा ही गेंदबाजी अभी करेंगे या नहीं, ये समय बताएगा। थोड़ा सा छोटा गेंद, टीम उनका बहुत अपराइट है, बेसिक्स बहुत अच्छे हैं। यार मुझे जो बड़ी बात लगी सोडी ये भी कि पिछले मैच में भी अहमदाबाद जैसे विकेट पे जिस प्रकार उनको उछाल मिल रही थी वो बहुत जबरदस्त थी। एक्शन बहुत बढ़िया है, बहुत कंट्रोल रनअप है, जैसे रिदम पकड़ते हैं, जैसे दौड़ते हैं, तो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं अच्छे क्वालिटी फास्ट बॉलर के, और अच्छी गति प्रदान कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा सोडी की इनके जो 4 ओवर है बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि अगर ये 4 ओवर में विकेट ले लेते हैं खासकर, फिर दबाव आएगा बंगाल टीम के ऊपर। और जॉय का विकेट बहुत बड़ा रहने वाला है, उन्हें काफी जॉय दिया है सबको जैसे वो बल्लेबाजी करते हैं, और आज जब उनका जो विकेट है वो एक बड़ा विकेट रहेगा पंजाब टीम के लिए। गेंद हवा में चला गया है, लेकिन नो मैन्स लैंड, बाल बाल बचे, 2 रन मिलेंगे। अच्छी गेंदबाजी आरडी संधू के द्वारा, काफी सटीकता दिखाई है इन्होंने जब से बॉलिंग शुरू की है इस टूर्नामेंट में। थोड़ा सा छोटा गेंद, बिल्कुल रूम नहीं दिया, खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में। फील्डिंग आपको अच्छी करनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है फील्डिंग, और अगर पंजाब फील्डिंग इस मैच में अच्छी करता है तो उनका बहुत बड़ा चांस है इस मैच को जीतने का। संधू टैलेंट पर्सोनिफाइड, बड़े सिंगर पंजाब के, ऐसा टैलेंट सीसीएल में ही देखने को मिलता है। ये करारा प्रहार, अब यहाँ पे 4 रन और मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे शॉट, जैसे ही देखा गेंद स्लॉट में है सीधे बल्ले से खेला। कि सीम जैसी मर्जी हो, पर यहाँ पे शॉट की तारीफ करनी होगी। जब अतुल वासन गेंदबाजी करते थे अपराइट सीम से तो गेंद लहराती थी, पर यहाँ पे लग रहा है गेंद लहरा नहीं रही और इसका फायदा मिल रहा है इंद्रशीष को। अच्छी गेंद आरडी संधू के द्वारा, यहाँ पर
एक रन लेने से ना रोक पाए। और आपने अपराइट सीम की बात की, बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अतुल वासन की बात की, मुझे याद है एक अपराइट सीम से इन्होंने रणजी ट्रॉफी में मेरा डंडा उड़ाया था। तो अपराइट सीम से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत मदद मिलती है, और कोचिंग मैनुअल भी यही बोलते हैं। और ये पार्ले जी क्राउड पूरा नजारा लेता हुआ सीसीएल का, शाम का समय और बड़ा गेम। इस बार अपील करते हुए अक्रॉस द लाइन आ गए थे और उंगली उठती हुई यहाँ पे पहली सफलता मिलती है। हालांकि बैट्समैन कह रहे हैं कि वो रेफरी का प्रयोग करेंगे और जॉय थे बैट्समैन, तो यहाँ पे अगर विकेट मिलती है पंजाब टीम को, ये बड़ी विकेट रहेगी। और जॉय बिल्कुल भी प्रभावित नहीं और तुरंत ही जो रेफरल है उसका प्रयोग किया। अभी भी इंतजार कर रहे हैं हम डिसीजन का। पहले देखना होगा कि नो बॉल तो नहीं थी, ये बिल्कुल सही डिलीवरी, तो इसमें अब कोई समस्या नहीं, तो नो बॉल नहीं है। और आप देखना होगा इंपैक्ट कहां था, गेंद कहां पे लगी थी। और मुझे ऐसा भी लगा सोटी थोड़ा सा शफल कर लिया था, थोड़ा क्रॉस लाइन खेलने का प्रयास किया। अगर आप देखें जो लेग स्टंप है वो विजिबल थी, वो दिख रही थी, तो यहां पे वो गलती कर गए जॉय। देखिए मुझे तो बहुत क्लोज लग रहा है कि काफी शफल कर गए थे और मिडिल स्टंप और लेग स्टंप दिख रहा था। अब क्या निर्णय थर्ड अंपायर का होता है वो जानना इंटरेस्टिंग रहेगा। ये देखिए अच्छी गेंद, थोड़ा अंदर आया विकेट के बीचों बीच। ओ हो है शायद लेग स्टंप मिस करेगा ये बॉल। वेरी इंटरेस्टिंग डिसीजन। बिल्कुल आसान काम नहीं है ना ऑन फील्ड अंपायर्स का ना थर्ड अंपायर का, लेकिन यहाँ पे लगता है शायद जॉय को एक लीज ऑफ लाइफ मिलेगा, फ्रेश लीज ऑफ लाइफ। के हक में डिसीजन ये जा सकता है, लेकिन हमें इंतजार करना होगा। क्या पंजाब को एक बड़ा झटका मिलेगा या नहीं, देखना बहुत इंटरेस्टिंग समय बताएगा अभी। और यहाँ पे पंजाब के शेर इंतजार करते हुए, वो जानते हैं ये विकेट कितना बड़ा है, कितना महत्वपूर्ण है। अच्छा स्टार्ट बहुत ही जरूरी है पंजाब के लिए। अगर वो यहाँ पे विकेट नहीं ले पाते तो मुश्किलें बहुत बढ़ सकती हैं, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा मौका। थर्ड अंपायर का डिसीजन का इंतजार। ना लंबा होता है उतनी धड़कनें तेज होती हैं। हैवी, बीनू, देव, गुलजार, आर्यमान, दीपक, बब्बल सब इंतजार करते हुए, सबकी नजरें उस पत्ती पर। ये देखिए गेंद हवा में लहराता हुआ अंदर गया, लेकिन इंपैक्ट लेग स्टंप या थोड़ा लेग स्टंप छोड़ रहा है। अब ये थर्ड अंपायर डिसाइड करेंगे। मुझे तो लगता है जॉय बच जाएंगे। जी हाँ, जिस एंगल से अब वो गेंद जा रही है वो लग रहा है यहाँ पे दुविधा रहेगी, और अब ऐसा लग रहा है शायद गेंद लेग स्टंप को मिस करती, पर अल्टीमेटली सोडी जो फैसला देना है वो थर्ड अंपायर को देना है, और बहुत दिलचस्प रहेगा उनका फैसला क्या है, उनका निर्णय क्या है। लोग इंतजार कर रहे हैं, तमाम समर्थक इंतजार कर रहे हैं दोनों टीम के, पर जॉय को ऐसा लगा एकदम कि गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही है, तभी वो रेफरल का प्रयोग किया। अभी भी आप इंतजार करते हुए जॉय, और ये एक बहुत अहम कड़ी रहेगी इस मैच में, कि जॉय एक बड़े बैट्समैन है बंगाल टाइगर्स के लिए और इनफॉर्म बैट्समैन है। देखिए गेंद कहां लगी, लंबा कदम आगे निकाला, और ऐसा लग रहा है थोड़ी सी समस्या है यहाँ पे। अब शायद इस डिसीजन को रिवर्स करेंगे। और नॉट आउट। जी हाँ, ये निर्णय जैसे हम चर्चा कर रहे थे, गेंद एंगल के तहत लेग स्टंप को मिस कर रही थी, तो अब सही निर्णय है अब थर्ड अंपायर का सोडी। बिल्कुल अजय, हम भी यही बात कर रहे थे कि जो इंपैक्ट है थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर है, और एक फ्रेश लीज ऑफ लाइफ जॉय के लिए। और जॉय का जॉय जारी इस टूर्नामेंट में, इनका आउट होना बहुत जरूरी है अगर पंजाब इस मैच में इंपैक्ट बनाना चाहती है। तो आखिरी गेंद, अच्छी गेंद, कैरी देख के तो मजा ही आ रहा है। और ओवर की समाप्ति यहाँ पर, क्योंकि अब उनमें क्षमता है विकेट लेने की। अच्छी गेंद और यहाँ पे मिसफील्ड, जिसके कारण 4 रन और मिलेंगे।
तो कहते हैं ना कि अच्छी गेंद जहां पे डॉट डिलीवरी होनी चाहिए थी, वहां पे पहले विकेट कीपर ने छोड़ा और फिर थर्ड मैन के दिशा में मिसफील्ड होती हुई। अगर हम फील्डिंग की बात करते हैं तो बहुत डिसअपॉइंट किया है पंजाब की टीम ने। ये देखिए 2 लैप्स नजर आए। तो पहले विकेट कीपर, एक आसान सा बॉल रोकना चाहिए था और उसके बाद देखिए बिल्कुल अच्छा नजारा नहीं अगर हम फील्डिंग की बात करते हैं। बंगाल टाइगर्स के समर्थक जानते हैं रन कैसे भी आए, रन आने जरूरी हैं और ठंड है नीचे। यार आप तो चंडीगढ़ ही रहते हैं सोडी, एकदम मौसम में तब्दीली हुई है, दिल्ली में इतनी ठंड नहीं है इस वक्त। कौन है कप्तान बंगाल टाइगर्स के? ये आपके लिए प्रश्न है, बीसीएल सुपर फैन का प्रश्न। जल्द से जल्द आप जवाब दीजिए और मौका रहेगा 1 लाख रुपए नकद जीतने का। जस्सी जो हमारे साथ कमेंटेटर बॉक्स में भी थे, काफी चर्चा हुई, कुछ बेहतरीन गाने भी गाए। फिलहाल ये मुकाबला देखते हो और पंजाब को सपोर्ट कर रहे हैं स्पीड जस्सी और गिप्पी गरेवाल, बड़े नाम पंजाब के लिए। पर ये जो है, ये जो स्कूटर है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया। ये कलर भी है यामा फेसिनो, एक जबरदस्त मशीन है, ब्लेजिंग एयर ऑफ स्टाइल एंड फिनिश। यहाँ पे अपील करते हुए क्या भारी किनारा लगा, बाहर ऐसा लग रहा है प्रभावित नहीं, वो मुस्कुराते हुए, कोई डीविएशन नजर नहीं आई और अंपायर ने जवाब भी दे दिया बॉलर को कि बैट हिट द ग्राउंड, आप अपनी बॉलिंग कीजिए। को नकार दिया गया है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी ठीकता से डाल रहे हैं, थोड़े पेसी लग रहे हैं, एफर्ट डाला बॉल में, अच्छी सीम पर पड़ा, थोड़ा सा बाहर गया लेकिन बहुत अच्छा निर्णय अंपायर के द्वारा, बैट जमीन पर लगा था। यहाँ पे थोड़ा छोटा गेंद, मौका हो सकता है पंजाब के लिए। पंजाब को अपनी फील्डिंग को सुधारना होगा, वो यहाँ पर इम्पैक्ट दिखाना चाहती है इस टूर्नामेंट में। ये देखिए आप इससे बेहतर एफर्ट कर सकते हैं, इन फील्डिंग ने पंजाब को लूट किया है अभी तक। और ये देखिए काफी डिसअपॉइंटमेंट, निराशा नजर आ रही है। अच्छी बॉलिंग को अच्छी फील्डिंग चाहिए। काफी दर्शक यहां पर मैच का आनंद लेते हुए, बहुत ही अच्छी गेंद, एफर्ट वाला गेंद जस्सी गिल के द्वारा। इनकी पेस से मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूं, बैक बेंड करते हैं, लेंथ बहुत अच्छी हिट करते हैं, लेकिन जैसे कहा जाता है अगर आपको फील्डिंग सपोर्ट नहीं करेगी तो आप क्या करेंगे। जी हाँ बिल्कुल छोटी, देखिए बहुत सिंपल है, कहते हैं ना कैचेस विन मैचेस, अगर आप कैचेस पकड़ेंगे, हाफ चांसेस कन्वर्ट करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और इस वक्त आप रन रेट पे नजर डालें तो 8 से ऊपर, जो कि एक अच्छा रन रेट मेंटेन किया बंगाल टाइगर्स की टीम ने। इस बार हवा में गेंद, भारी किनारा, 4 रन और मिलेंगे। खिलाड़ी टीम में तैनात था पर मात्र दर्शक ही रह गया। 4 ओवर की समाप्ति, 35 बिना किसी नुकसान। गेंद हार्डी संधू के द्वारा, जो पेस कैरी हमने अहमदाबाद में देखा था वो नहीं दिख रहा है इनकी बॉलिंग में। और यहाँ पे देखिए एक और फील्डिंग एफर्ट में कमी, आप ऐसे मैच नहीं जीत सकते। जी हाँ बिल्कुल, और खासकर अगर आप फेंस में हैं, बेहतर ये है कि आप थोड़ा अंदर आप आ जाएं, क्योंकि आप जब बैट्समैन दूसरे रन के लिए जा रहा है, अगर आप अंदर है तो बेहतर रहता है। तो काफी पीछे खड़े हुए हैं लॉन्ग ऑन फेंस पे। हंसराज हंस एक बड़े गायक, बड़े सिंगर, पंजाब में बहुत बड़ा नाम, बल्कि भारत में बहुत बड़ा नाम। इनको देख के तो एक ही लाइन याद आती है, ये जो सिल्ली सिल्ली आंदी है हवा, कितने कोई रोंदा होवे। आग लगा दी थी उस गाने ने। यार आपका गाना भी सुनना है सोडी, आप में आपकी आवाज में दम है, 2-3 लाइनें और गा दो यार, मतलब मजा आ गया। ये सिल्ली सिल्ली सुन के मजा आ गया, जोश आ गया कॉम बॉक्स में। अरे आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं। और यहाँ पे
गाना ये तो बहुत अच्छा गाते हैं। अगर मैं मजाक अच्छा करता हूँ, गाते बहुत बढ़िया है। हार्डी संधू, इनका गाना आप जरूर सुनिए अजय, बेहतरीन सिंगर। यार मुझे लग रहा है कमर में थोड़ी समस्या है, जैसे आप कह रहे थे सोडी, बिल्कुल अहमदाबाद में जो गति प्रदान कर रहे थे वो यहाँ नजर नहीं आ रही। यहाँ पे ऐसा लग रहा है लाइन और लेंथ पे ज्यादा गेंदबाजी करना चाहते हैं। फिर से बैट्समैन 2 रन लेते हुए, और ये होगा ही जब आप अपने जूते से गेंद को रोकेंगे तो मौका मिलता है, अवसर मिलता है। आयुष्मान खुराना बोनी कपूर के साथ बैट के मुकाबला देखते हुए, और ये एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है ऑपरेशन रिस्टोर 100, जो कि रिस्टोर करता है कई औरतों की जिंदगी जो कि पीड़ित हैं एसिड अटैक से, और प्रमोट करते हैं स्किन डोनेशन में। और ये बिग ब्रदर फाउंडेशन जो सचिन जोशी की है, उसकी एक बहुत बेहतरीन पहल, और हर रन के लिए 1000 रुपए डोनेट करते हैं ऑपरेशन 100 रिस्टोर की तरफ। तो सही दिशा में और एक अच्छी पहल बिग ब्रदर फाउंडेशन द्वारा। यहाँ पे सपोर्ट नजर आ रही है पंजाब के शेरों के लिए, लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस अभी फील्ड पे नजर नहीं आ रही है। हार्डी के द्वारा, अगर हम स्विंग की बात करते हैं तो अहमदाबाद में हार्डी को स्विंग मिल रहा था, वो नहीं मिल रहा है यहाँ। क्या लगता है अजय, कंडीशन ज्यादा ड्राई है? मुझे ऐसा भी लग रहा है कि विकेट में थोड़ा सा मॉइस्चर है, और जब गेंद भी थोड़ी गीली हो जाती है तो जो स्विंग है वो कम हो जाता है। अगर आप जैसे जैसे आप देखेंगे मैच आगे बढ़ेगा, गेंद स्किड करेगी, फिर स्विंग बंद हो जाती है। बेशक थोड़ी सी फॉग भी नजर आती हुई, हेवी एटमॉस्फेयर है, पर मुझे लगता है गीली क्योंकि आउटफील्ड है, और जब भी गेंद ट्रैवल करेगी इस तरह गेंद और ही गीली होगी, तो जो गेंदबाज है उसकी समस्या बढ़ती जाएगी। खराब गेंद हार्डी संधू के द्वारा, ज्यादा आगे गिर गया, थोड़ी अपनी लय को खो दिया यहाँ पर, लेकिन बैट्समैन ने कोई गलती नहीं की। कॉपी बुक कवर ड्राइव। यार ये तो क्लासिक शॉट है, मतलब क्या पोजीशन में आए, देखिए बैट फ्लो देखिए, हेड पोजीशन देखिए, थोड़ी हवा में थी पर फील्डर से दूर, और गोली की माफिक जाती हुई या सीमा रेखा तक। एक बेहतरीन स्टार्ट है बंगाल टाइगर्स के लिए। टॉस जीता उनके कप्तान जिशु ने, और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया, और ऐसा लग रहा है दोनों ही बैट्समैन काफी बूस्ट पी के आए हैं, 3 या 4 गिलास कम से कम। और ये देखिए, और ये बड़ा प्रहार, 2 बाउंस और सीमा रेखा के बाहर रन आते हुए तेज गति से 5 ओवर की समाप्ति, 48 बिना किसी नुकसान। So after 5 overs, Bengal Tigers is on 48. Without a loss of wicket, 5 ओवर हो चुके हैं। Bengal Tigers won the toss and elected to bat. और इसी के साथ साथ कुछ और यहाँ पे एक्साइटिंग प्राइजेस हमारे पास हैं आप लोगों के लिए, जो कि हमें स्पॉन्सर की तरफ से यहाँ पे आप लोगों के लिए आए हैं। उसके लिए आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि आपके टिकट्स आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि हम कोई भी टिकट नंबर रैंडमली अनाउंस करेंगे